آج مزدور کلاس تو چھوٹی ہے، کیا بات ہے؟ رشید برمی صاحب کون؟ رشید برمی ہاں ہاں اور ڈاکٹر صاحب وہ تو پہلے سے کہ مجھے پتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نہیں آئے، اور کون نہیں آیا؟ لیڈیز کی کلاس پوری ہے، وہ بھی چھوٹی لگ رہی ہے کہ ایک کنارہ خالی پڑا ہے. طوبہ نہیں آئی ابھی تک، میں خیال آ جائے گی. شروع کریں پھر. کیا حال ہے فرد تمہارا؟ اچھی ہو؟ کل تمہارا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، وہ بنا کے 6 آلو، وہ جیت گیا سب سے ماشاءاللہ. اس جیسا جیکٹ پلیٹو کوئی نہیں بناتا. ان کا بیٹا ہے نا عمر، ٹاپ ایکسپرٹ ان جیکٹ پوٹیٹوز. کل اس کا مقابلہ ہوا تھا اردو کلاس میں، تو یونانیمس ووٹ سے جیتا وہ. مجھے پھر ترکیب بتا رہا تھا، کہتا تھا بات یہ ہے کہ میں اس کے سائٹ پہ اندر سوراخ کرتا ہوں ہر طرف سے، تو جو ہیٹ ہے وہ اندر جا کے اس کو خستہ بناتی ہے کہ عام لوگوں کو نہیں پتا. اور واقعی بڑا فرق یہ تھا، کیونکہ روہت شاہ کی بیٹی نے جو بنائے تھے نا، اس میں وہ اندر بھاپ سے پکے ہوئے لگ رہے تھے، وہ خستگی نہیں تھی جو اون کی ہونی چاہیے. زیادہ بڑا فرق یہی تھا. مجھے اس نے کان میں بتائی ترکیب کی. میں کہ ساری دنیا کو کان میں بتا دیتا ہوں. ہاں وہی. کیوں جی کیا بات ہے؟ اچھا اچھا. اب تو پورا قریباً ہو گیا ہے. طوبہ کے سوا باقی سب آ گئے ہیں. کیا وہ آ رہی ہے شاید؟ نہیں وہ تو کوئی اور ہے. آ جائے گی، کیونکہ میں نے فون سے پوچھا تھا، کہتے تھے میں نے آنا ہے، اس لیے وہ آ جائے گی. اچھا شروع کریں پھر. ڈل کمارا. آج نئی دوا شروع کرنی ہے نا. ڈل کمارا میں اس لیے چنی ہے کہ آج کل کے موسم میں میرا خیال ہے ڈل کمارا روزمرہ کام آنے والی دوا ہے. کیونکہ بعض دوائیں آپ نے پڑھی ہیں، سردیوں سے گرمی میں جائیں تو تکلیف بڑھتی ہے، بعض گرمیوں سے سردی میں جائیں تو تکلیف بڑھتی ہے، بعض موسم بہار کے وقت پڑھی ہوئی ہے نا، بعض نمی سے تکلیف بڑھتی ہے، بعض خشکی سے تکلیف بڑھتی ہے. تو کوئی نمونے یاد ہیں نمی کی؟ کس کس چیز سے نمی سے تکلیف بڑھتی ہے؟ کس کس چیز کو؟ ہاں جو ہمیں پڑھانی ہے. اور ہے نہیں ریسٹاکس، چوٹی کی دوا، نیٹرم سلف، نیٹرم مور. دونوں خاص طور پر نیٹرم مور سمندری نمکین ہوا جو ہے بھیگی ہوئی، اس میں نیٹرم مور بہت ایگریویشن دکھاتی ہے. اور سردی سے تکلیف کس کو بڑھتی ہے زیادہ؟ خشک سردی، ایکونائٹ. ہاں کاسٹیکم میں بھی ایک جیسا خشک موسم ہو یا گرم موسم ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، اگر خشک ہو تو اس میں کاسٹیکم ہے. صرف سردی کی دوا نہیں، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے. یہ کاسٹیکم گرمی کی بھی دوا ہے اگر خشک ہو، اور اس کا اثر پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر پھر ظاہر ہوتا ہے قریباً 24 گھنٹے میں. مگر وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے. ڈل کمار ہیں سردی سے برائیاں کا کوئی تعلق ہے؟ برائیاں گرمی میں جانے سے، سردی سے گرمی میں جا رہے ہیں آغاز میں، برائیاں بہت مفید ہے. یہ میوکس میمبرینز کی چوٹی کی دوا ہے ڈل کمارا، نزلاتی جھلیوں کی بہت اہم دوا ہے. اور اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ موسم میں کوئی بھی تبدیلی ہو، خاص سردی سے گرمی کی طرف یا گرمی سے سردی کی طرف، نمی سے خشکی یا خشکی سے نمی، ہر تبدیلی میں یہ میوکس میمبرینز پر یعنی نزلاتی جھلیوں پر حملہ کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں دوا حملہ کرتی ہے، مراد اس دوا میں یہ علامت پائی جاتی ہے کہ ایسے مریضوں کی نزلاتی جھلیوں پر ہر موسم کی تبدیلی سے جراثیم حملہ کرتے ہیں.
मगर किताबों में ये लिखा होता है कि इस दुआ में ये पाया जाता है। और आजकल चूंकि मौसम बहुत अदल बदल रहे हैं, इस सारे अरसे में आपने देखा हो कि बहुत लोगों को नज़ले हुए और बार बार हुए हैं, और एक फ्लू से बचे तो दूसरा शुरू हो गया। ये डलकमारा की खास इलामत है। इसलिए मेरे ख्याल में डलकमारा आजकल इस्तेमाल होना चाहिए। बाद मरीजों पे मैंने इस्तेमाल किया, उनके अंदर फ़ायदा देखा है उनमें। अगर उनकी अलग इलामत पहले से मौजूद हो कि ऐसा मरीज हमेशा नमी से तकलीफ उठाता है, तो इस मौसम में भी डलकमारा की ज़रूरत नहीं है। डलकमारा की ज़रूरत है जब बाकी मरीज के हिस्से नाकाबिल पहचान हो और सिर्फ ये पता हो कि बार बार तकलीफ हो रही है, हर दफ़ा मौसम के बदलने से बीमार पड़ जाता है। ऐसे बच्चे जो डलकमारा के मरीज हों, वो सारी सर्दियां ही तकरीबन बीमार रहते हैं और गर्मी सर्दी होती रहती है, और डलकमारा के नाक के अंदर प्लग्स बन जाते हैं। लेकिन ये खसूसियत इसकी नहीं है। खसूसियत ये दवा, और ये बात औरों में भी पाई जाती है चीज़ों में। मैंने सिस्टस आपको बताया था, उसमें सिस्टस बताई थी जो झिल्ली वाली, नहीं, सिक्यूटा विरोसा, वो झिल्ली वाली वो थी, या कॉकस कैक्टाई। कॉकस कैक्टाई में बताया था कि झिल्लियों में से जो भी मादा निकलता है वो लंबा बटा हुआ धागा सा लगता है। याद नहीं आ रही थी, अब याद आ गई है। इस तरह कन्फ्यूजन हो जाता है। ज़्यादा दवाएं याद करने के बाद बाद दफ़ा फौरी तौर पर कन्फ्यूजन होता है, एक दवा की सिम्टम दूसरे में जा रही होती है। बार बार कहने से, बार बार सोचने से आदत पड़ जाती है दिमाग को। अच्छा, अब इसमें जो नुमाया फीचर्स हैं मैं आपको बताता हूं। इसके खिलाड़ी जो कपड़े जल्दी उतार दें, जिस्म गर्म हो, उनको भी नज़लाती तकलीफें हो जाती हैं, जिनको हों अगर, और जिनको हर दफ़ा इसका असर पड़े, बाहर से बच्चा खेल के आया, गर्मी से अंदर आया, खास सर्दियाँ ना भी हों तो कुछ देर के बाद उसको नज़ला शुरू हो जाए, या सर्दी से बाहर गर्मी में अचानक निकल जाए, धूप में जाने से भी बाद दफ़ा नज़ला हो जाता है लोगों को। ये इलामतें डलकमारा की हैं। और इसमें रात को तकलीफ बढ़ती है और आराम से तकलीफ बढ़ती है। इसकी जो कटार्स हैं वो हर जगह हैं, गुर्दे पर भी असरअंदाज होती हैं, अंतड़ियों पर भी, मैदे पर भी, और जहां ये असर दिखाएं उसके मिलती जुलती इलामतें पैदा हो जाएंगी। मसलन पेशाब बार बार आना शुरू हो जाएगा, डायरिया सा लग जाता है बाज़ दफ़ा। वो बरह रास्त असहाल की तकलीफ नहीं, बल्कि नज़लाती तकलीफ होती है अंतड़ियों या गुर्दों की। गर्मियों में लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं, जब वापस आते हैं अगर नज़लाती तकलीफें हों तो उसकी भी यही दवा है। गर्मियों से पहाड़ों पर जाने से जो नज़ले शुरू हो जाते हैं अचानक, उनकी भी यही दवा है। और बार लोगों को सर्दी लगने से पेचिश हो जाती है साल की बजाय, उस पेचिश की भी डलकमारा दवा है। डलकमारा अगर ऊंची ताकत में दी जाए तो इस किस्म की कमजोरियों को का दिफा करती है, और अक्सर मरीज मौसम की तब्दीलियों से फिर इतना जल्दी असरअंदाज नहीं होते। अगर पसीना दब जाए, वो भी मसलन ठंड में आने से या किसी और वजह से अचानक दब जाए, उससे जो तकलीफ होगी वो भी डलकमारा की निशानदही करती है। मगर और भी उसमें दवाएं हैं, ब्राउनिया भी उसमें शामिल है।
एक इसके नज़ले में ये भी बात पाई जाती है कि नाक से शुरू हुआ, आंख में जाकर आंख को बीमार कर देता है और फिर वहां बैठ रहता है। जो नज़ला नाक से शुरू हो, पता है कि नज़ला हुआ है, फिर आंखें बाजी बोझल हो जाएं, आंखों में जो मादा निकले वो क्रोल भी कुछ करे और मुस्तकिल आंखों का आजार लग जाए लंबे अरसे के लिए, बाज़ दफ़ा क्रॉनिक हो जाता है। ये डलकमारा की अलामत है। ये नज़ला डलकमारा अगर ना दिया जाए तो बाज़ दफ़ा बहुत लंबा अरसा चलता है। आमतौर पर डलकमारा चूंकि बार बार होता है, ये नाक को मुस्तकिल प्लग कर देता है और बाल बच्चे वो नज़ला आके हट भी जाए तो फिर भी ब्रीद नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते नाक से, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता तह जमाता रहता है और नाक को प्लग कर देता है। खास तौर पर ये अपना जोर ये खिजा के ज़माने में दिखाती है डलकमारा। आजकल जो ज़माना है ये वही है, क्योंकि खिजा का दौर शुरू हो चुका है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स में बाज़ दफ़ा ये अल्सरेशंस भी पैदा करती है। ये दवा अल्सरेशन पैदा कर देती है और अल्सरेशन का नज़ले के अलावा अल्सरेशन पैदा करना भी इसके मिजाज में दाखिल है, जो सिर्फ नज़लाती झिल्लियों में नहीं बल्कि जिल्द में भी, जिल्द में भी होती है और चेहरे की जिल्द पर एक्जीमे की किस्म की अल्सर्स पैदा करती है, जो ज़ख्म होते हैं और फैलते हैं, फिर क्रस्ट बन जाती हैं। ख़ास तौर पर कल्लों पर इसका हमला होता है। बच्चों के एक्जीमा आजकल बहुत आम है, लंदन में तो बहुत ही ज़्यादा है। बच्चों के एक्जीमे में अगर यहाँ खुरदरी क्रस्ट बने और वो आहिस्ता आहिस्ता एक्जीमा बने तो उसमें शक करना चाहिए डलकमारा पर। हो सकता है डलकमारा ही दवा हो, मगर एक दफ़ा जब बढ़ जाए तो फिर ये फेजिडेनिक हो जाता है। फेजिडेनिक या फेजिडेनिक ही होता है गालिबन तलफ़्फ़ुज़। उस अल्सर्स को उन अल्सर्स को कहते हैं जो जल्दी से फैल जाते हैं, खाने वाले अल्सर्स जो इर्द गिर्द फैल जाते हैं। इसके एक्जीमे में भी फिर अल्सर्स दाखिल हो जाते हैं और फैलने लगते हैं। और दूसरे इसमें एम्पेटिगो गालिबन लफ्ज़ है, मगर जो भी है मामूली फ़र्क है तलफ़्फ़ुज़ का। एम्पेटिगो भी पैदा करने की टेंडेंसी है। एम्पेटिगो उन छालों को कहते हैं जो क्रॉप्स की शक्ल में, छोटे छोटे गुच्छों की शक्ल में बनते हैं और फैलते हैं जल्दी। और ये दो इलामतें आर्सेनिक में भी हैं, और आर्सेनिक में फेजिडेनिक अल्सर पैदा करने की इलामत सबसे ज़्यादा नुमाया है। लेकिन आर्सेनिक और डलकमारा का मरीज बिल्कुल साफ पहचाना जाता है एक दूसरे से अलग। तो सिर्फ ये देख कर के अल्सर हैं और फैल रहे हैं या खाने लग गए हैं अंदर, वैसे मुंह में छाले हैं तो जुबान के अंदर तक उतरते हैं, खाने लग जाते हैं, गम्स को खाने लग जाते हैं। जिल्द पर हैं तो वो सुराख नीचे भी उतरते हैं और फैलते भी हैं। ये आर्सेनिक की खास इलामत है और इसीलिए आर्सेनिक उसकी गैंग्रीन की चोटी की दवाओं में है। उसमें स्याही पैदा करने का रुझान भी है आर्सेनिक में, लेकिन डलकमारा में गैंग्रीन नहीं है। फेजिडेनिक अल्सर्स तो मौजूद हैं लेकिन गैंग्रीन नहीं होती। शिन बोन जहां भी पतली झिल्ली हो
जल्द की सतह पतली हो, वहां भी अल्सर्स पैदा करने की टेंडेंसी डलकामारा का एक नुमाया हिस्सा है, नुमाया खासा है। आर्सेनिक और डलकामारा में एक और फर्क है अल्सर्स की शक्ल के लिहाज से। आर्सेनिक बुबोनिक अल्सर्स भी पैदा करता है जो डलकामारा में नहीं है। बुबोनिक प्लेग आपने सुना होगा लफ्ज कि नहीं? किसको कहते हैं? क्यों जी? वो ताउन जिसकी पेशगोई हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी और बहुत कसरत से उस दौर में अहमदी हुए हैं, क्योंकि जैसा फरमाया था उसी तरह पूरी हुई। उसका नाम टेक्निकल था ब्यूबोनिक प्लेग। बूबो इन गुठलियों को कहते हैं जो बगल के अंदर दोनों तरफ होती हैं। अगर वो सूज जाएं और मुतवर्रम होकर उनमें पस पड़नी शुरू हो जाए, अगर साथ तेज बुखार हो, फूकने वाला बुखार, तो अक्सर यानी ताउन के ज़माने में ये बड़ी नुमाया अलामत होती है। बुखार 106-7 तक पहुंच जाता है, किसी तरह काबू नहीं आता और बहुत जल्दी मरीज मरता है। बेकरारी, बेचैनी, दर्द की शिद्दत नाकाबिल बयान है, मगर ज़्यादातर वो आग लगने का कहता है कि आग लग गई है। ये ब्यूबोनिक प्लेग की अलामत है। आर्सेनिक में ब्यूबोनिक प्लेग की इब्तदाई अलामतें पाई जाती हैं। बेचैनी है, मगर बुखार की वो शिद्दत नहीं होती जो ब्यूबोनिक प्लेग में अमूमन पाई जाती है। इसलिए हो सकता है पैलिएटिव के तौर पर काम करे। अगर किसी वक्त ऐसा दौर हो, मसलन पहले भी हिंदुस्तान में ब्यूबोनिक प्लेग फूटी थी, मुमकिन है दोबारा आए, तो अहमदी जो मुआलिज हैं उनको याद रखना चाहिए कि आर्सेनिक भी काम आ सकती है, बल्कि शुरू में सल्फर, मरकरी और फिर आर्सेनिक, इन तीनों पर ज्यादातर इन्हिसार रह सकता है। एनलार्जमेंट और हार्डनेस ऑफ ग्लैंड्स, ये तो दोनों में मुश्तरक है, डलकामारा में भी और आर्सेनिक में भी। लेकिन जो मैंने बताया ना, बुखार और वो खासतौर पर बगलों की गुठलियों को सूजना, पीप पड़ जाना, ये आर्सेनिक का खासा है। चीक्स का मैं आपको बता चुका हूं, वो भी नोट में लिखा हुआ है यहाँ। बच्चे की चीक्स का पहले बता चुका हूं ना आपको। यहाँ खुरदरे हो जाते हैं दोनों तरफ से और फिर वो फैलते हैं, फिर उनमें अल्सरेशन भी शुरू हो जाती है। और सर पर भी इसकी एरप्शन होती है जो मॉइस्ट होती है, जो मेजरियम से मिलती है। मेजरियम में लगता है कि सारे सर के ऊपर एक झिल्ली आ गई है, उसके अंदर पस पल रही है, उसके अंदर बैक्टीरिया, पस वगैरह उबलते हैं। बहुत ही खौफनाक नक्शा जिसमें से बदबू बहुत उठती है। डलकामारा में सर की एरप्शंस कुछ उससे मिलती है, लेकिन वो इंतहा नहीं पाई जाती और बदबू इतनी नुमाया नहीं है जितनी उसमें है। वो अगर दब जाए सर का अजीमा, तो नाक में वो उससे बड़ी सख्त बदबू वाला नजला मुस्तकिल डायमंड ठहर जाता है, उसको अजीमा कहते हैं। मेजरियम की अलामत बता रहा हूं आपको, ये डलकामारा की नहीं। डलकामारा का नजला सेटल होता है जो मुस्तकिल आंख में सेटल होता है, सर पे नहीं या नाक के अंदर नहीं। आया, हमला किया, फिर गया, फिर दोबारा नाक पे हमला किया या किसी जगह, ये इसकी आदत है। लेकिन सेटल अगर होता है तो ये आंखों ही में होता है हमेशा। लेकिन एक्जीमे का नजरे में बदलना इसमें नहीं पाया जाता। वो किस में पाया जाता है? मेजरियम। और इतना नुमाया है उसमें कि एक दफा एक मरीज को जो पुराना नजले का मरीज था, बदबूदार नजले का, उसको मैंने दिया
تو सिर पे एक्जिमा आ गया और नज़ला बिल्कुल ठीक हो गया। उस वक्त मुझे उसने बताया कि मुझे पहले एक्जिमा ही होता था, वो ठीक किया किसी हकीम ने या डॉक्टर ने, तो उसके बाद ये नज़ला मुस्तकिल रह गया। फिर वो अल्लाह के फजल से मेजरीन ही से वो सर का नज़ला भी ठीक हुआ, ना सर का एक्जिमा भी ठीक हुआ। जो डलकमारा से मिलती जुलती एक्जिमा की अलामतें हैं, उनमें नुमाया बाज आपको याद रखनी चाहिए। कभी एक काम आ जाती है, कभी दूसरी, मगर अमूमन इनके दायरे में रहती है सीपिया, आर्सेनिक, ग्रेफाइट्स, डलकमारा, पेट्रोलियम, सल्फर, कैलकेरिया के बाद मुख्तलिफ सॉल्ट्स और रस्टॉक्स भी अगर छाले बड़े हों। अगर बहुत बहने वाला एक्जिमा हो और बड़े बड़े ब्लॉब्स हों तो उसमें रस्टॉक्स सबसे नुमाया चीज़ है। और उसके अलावा दो दवाएं हैं जो आपको एक्जिमा में याद रखनी चाहिए, क्रोटन और एनाकार्डियम। एनागैलिस भी है, ठीक है। एनागैलिस की एक खास इलामत है जो बाकियों से इसको मुमताज करती है। वो हील हो जाता है फिर उसको जहां से ठीक होता है उसी जगह दोबारा फिर एक्जिमा उगता है और बार बार इस तरह होता है। शफा हो गई, बिल्कुल सेहतमंद जिल्द होने के बाद फिर वहीं से फिर दोबारा एक्जिमा। ये जो बार बार की जिद है एक्जिमा की, उसी जगह जहां शफा हो चुकी हो, ये अजीब बात है, क्योंकि आमतौर पर होम्योपैथिक में जो होम्योपैथी दवा के रद्द अमल से एक्जिमा ठीक हो तो वहां नहीं होता, फिर और जगह कुछ हो जाएगा, लेकिन साफ जगह साफ ही रहती है। बार बार रिपीट करना उसी जगह पर जो ठीक हो चुकी हो, ये एनागैलिस की इलामत है खास तौर पे। और मकाम एक्जिमा का, इसका और क्रोटन का और रस्टॉक्स का, तीनों का मिलता है। यानी रान के इर्द गिर्द बदन के निचले हिस्से पर बड़ा नुमाया एक्जिमा हो जाता है। और एनाकार्डियम सारे बदन में आम है, लेकिन उसके छाले छोटे होते हैं और उसमें आमतौर पर वर्म पाई जाती है जो बहुत गहरी खुजली के ऊपर वर्म की तह चढ़ी होती है। वो नाकाबिल बर्दाश्त चीज है कि खुजली करो और अंदर ना पहुंचे, हाथ ना पहुंचे अंदर। वो एनाकार्डियम की इलामत भी है और फास्फोरस की भी इलामत है। फास्फोरस में और इसमें फर्क यह है कि फास्फोरस में बदमजगी बहुत है, खुश्की और गुस्सा दिलाने वाली खारिश जो असाब को झन्ना के रख देती है। एनाकार्डियम में मजा तो है, लेकिन जहां मजा आना चाहिए वहां पहुंचता नहीं हाथ। खुजली का जो एक मजा होता है मालूम होता है कहीं अंदर, लेकिन ऊपर से करी जाए अंदर पहुंचता नहीं। जो फास्फोरस का वर्म और उसकी खुजली है बड़ी बदमिजाज है, जिसको उसी को पता चलता है। मुझे हो चुकी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एलर्जी हुई थी एक इससे मलेरिया की अंग्रेजी दवा से। हाथ बिल्कुल डबरोटी की तरह हो गए थे अंदर की तरफ से, पांव भी, और ज्यादातर हथेलियों और तलवों में इसने जोर दिखाया था। और इस कदर शदीद बेचैनी और आसाब में बदतमीजी पाई जाती थी, कोई उसमें वो लिहाजदारी नहीं थी। अंदर है कहीं, और घबराहट भी, इर्द गिर्द सन्नाहट जो नींद को करीब तक नहीं आने देती। दूसरे युगों में बच्चा सो जाता है, उठ जाता है, सो जाता है, उठ जाता है, लेकिन यह कि मुस्तकिल जागे इंसान 24 घंटे, क्योंकि उसकी बदमजगी की वजह से नींद का मजा आ ही नहीं सकता। वो फिर मुझे फास्फोरस का ख्याल आया, एक ही खुराक, यूं लगा जिसने अंदर से सारी तकलीफ निचोड़ ली है। बैठना शुरू हो गया, जोश खत्म, सनसनाहट होके आराम से वो बैठ के
اور پہلی دفعہ پھر گہری نیند آئی اس کے بعد، پھر ایک دفعہ دوبارہ ایسا ہوا، پھر یہی ہوا. تو اس لیے مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ ایسی تکلیف میں فاسفورس ایک چوٹی کی دوا ہے، بہترین اور فوری کام کرتی ہے. ایناکارڈیم کا اور مزاج ہے، وہ مریض ہر وقت یوں کرتا رہتا ہے ہر وقت، اور زیادہ رانوں کے ارد گرد اس میں رانوں پر، مگر وہ جگہ جو میں کہہ رہا تھا لسٹاکس وغیرہ وہ ایناکارڈیم کی ایسی علامت نہیں ہے. رانوں پر ہوتا ہے ویسے خاص طور پر، یہ ٹھیک ہے، ہاتھوں پر بھی ہوتا ہے، بازو میں بھی ہوگا. چھوٹے دانے یا چھوٹے چھالے اور اس کی پوری کراپ جب ایگزیما بن جائے، اگر آغاز ہو خارش ہو تو وہی جو بتا چکا ہوں، گہری ہوگی، بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ چھری سے کاٹ دیں، اندر پہنچیں کسی طرح جہاں کھجلی ہو رہی ہے، لیکن اس کی ورم وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی. سیپیا عام طور پر ایگزیما میں سلفر کے علاوہ بہت ہی مؤثر دوا ہے. جن جگہوں میں پولوشن ہے کاروں کی، پیٹرول وغیرہ کی، ان میں پیٹرولیم بہت اچھا کام دکھاتی ہے. لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ پیٹرولیم کے علاوہ ریڈیو برومیٹم 30 میں ساتھ ملا دیا جائے تو ایک اچھا نسخہ ہے، کیونکہ ریڈیشن بھی ہے فضا میں یہاں، اور پیٹرولیم کا ویسٹ بھی بہت ہے فضا میں. ہیڈ ایکس اس میں ہوتی ہیں ڈیمپ ویدر سے، کولڈ سے، جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں. رومیٹک ہیڈ ایکس بھی ہوتی ہیں اس میں. کیکٹس گرینڈیفلورا، کیکٹس پڑھا چکا ہوں، ہاں پڑھایا تھا پہلے، ضمن ذکر کیا تھا، پڑھایا تو نہیں تھا نا؟ نہیں. کیکٹس کا درخت کہاں اگتا ہے؟ ڈیزرٹ میں، کہاں؟ شہرام صبر کا صرف ان کو پتا ہے. ربوا میں بھی ہے، جی شہرام تو جہنم کے دروغہ بننے کے اہل ہیں. ان کا دروغہ جو ہے وہ فرشتہ ہوگا، وہ جہنمی نہیں ہوتا، وہ جہنم سے بالکل امیون ہوتا ہے، کیونکہ ان کو یہ آواز پتا ہے کہ جہنم کی تہ میں یہ اگتا ہے. اصلھا فی الجحیم، وہ تھور جس کا ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے، کہتے ہیں اس کی جو جڑ ہے وہ جہنم میں ہے، اور یہ مزاج ہے تھور کا، اس لیے میں یہ بات چھیڑی ہے. تھور ویسے تو انسان سوچتا ہے کہ کھانے والی چیز نہیں، بہت ہی خوفناک، بدصورت اور کانٹوں والا اور نظر کو دھکا دینے والا پودا دکھائی دیتا ہے، لیکن صحرا میں اس کا بھی اپنا ایک حسن ہے، اور بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ہر طرف شاخوں پہ شاخیں نکالتے چلے جاتے ہیں، اور بعض صحراؤں میں اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ بڑے قدا و درختوں کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن جو تکلیف والی چیز، جو اس کا اثر انداز ہونے والا حصہ ہے، وہ پھل ہے اس کا. تھور کا پھل بہت لذیذ، بہت خوشنما، سرخ رنگ اور گلابی رنگ ملا جلا، بہت ہی پیارا پھل دکھائی دیتا ہے، اور اس کا جوس لذیذ ہے، لیکن اس کی لذت کے ساتھ ہی اس کے اندر کوئی آخر پر ایک چیز ایسی رہتی ہے جیسے ایک کسیلا پانی یا کوئی خاص اچھی نہ لگنے والی بو سی رہ جاتی ہے، وہ آخر پر ظاہر ہوتی ہے. جو لوگ اس کو زیادہ کھاتے ہیں ان کو ضرور پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، اور گردوں پر بہت برا اثر کرتا ہے، اور پیشاب میں نہ صرف جلن بلکہ اسپیزم ہو جاتے ہیں، اور بہت تکلیف دہ پیشاب کی علامت ظاہر ہوتی ہے، جو کینتھرس وغیرہ دوسری علامتوں سے دواؤں سے کچھ ملتی تو ہے لیکن فرق ہے. کینتھرس میں جلن ہے بہت پیشاب میں،
कतरा कतरा आता है, आग की तरह जलता हुआ कतरा आएगा और फिर कुछ देर के बाद फिर दोबारा। कैक्टस में इस आग के साथ स्पेज़म है बहुत अचानक, और ये इसका स्पेज़म हर जगह जहां भी कैक्टस की तकलीफ होगी वहां पाया जाएगा। स्पेज़म्स की जो सर्कुलर फाइबर जिसको कहते हैं ना, मसल्स वगैरह के चक्कर जिनमें हो, छल्लेदार जो फाइबर्स हैं जिससे जो पेशाब वगैरह को रोकने और या जारी करने के लिए वेल्व्स होते हैं सारे, उन सर्कुलर फाइबर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है और हमला एकदम करता है। बार लोग एकदम दिल को हाथ मारते हैं कि गया, जैसे वहां जकड़ दिया किसी ने यूं मुट्ठी में लेके, वो खासतौर पर कैक्टस के मरीज होते हैं। और इसीलिए दिल में इसको याद रखना चाहिए, दिल की बीमारियों में, यहाँ तक के जो ऑर्गेनिक बीमारियां बन चुकी हों, जो दिल के मसल्स पर असरअंदाज हो चुकी हों, अगर कैक्टस की ये अलामत पाई जाती है तो क्यूरेटिव भी है, वो ऐसे अमराज से खुदा के फजल से शफा दे देता है जिसके लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एक ऑर्गेनिक बीमारी अगर हो जाए, दिल के मसल्स फैल चुके हों, वेल्व्स खराब हो जाएं, तो एलोपैथिक में उसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन होता है बहरहाल। तो होम्योपैथिक में हो जाता है और बारहा मैंने देखा खुदा के फजल से फैले हुए दिल नॉर्मल साइज पे आने लगते हैं। लेकिन कैक्टस की ये इलामत याद रखें, गले में भी होगा तो बड़ी जोर से जकड़ देगा गले को, और हर जगह खून का रश और स्पेज़म, चेहरे पर भी खून का रश होगा, दिल की तरफ भी होगा, गुर्दों की तरफ भी होगा, अंतड़ियों की तरफ भी होगा। खून का दौरान एकदम बड़े, इससे किस दवा से मिलता है दौरान खून का एकदम इज्तिमा? बेलाडोना, और उसमें भी स्पेज़म है। फिर फर्क कैसे करेंगे आप, फर्क कैसे करेंगे बताइए? चेहरा भी इसका सुर्ख होगा। किसका? और इसका? धड़कन होगी बेलाडोना में, थ्रोबिंग धड़कन होगी बेलाडोना में। इसमें बड़ी सा धड़कन है। धड़कन तो कैक्टस में इतनी है कि मैं बताना भूल गया, शुक्रिया आपने याद करा दिया। बेलाडोना को भी बीट करती है और सारे जिस्म में धड़कन हो जाती है। एक्साइटमेंट हुई है तो सारे उंगलियों के पोरे तक धड़कने लगते हैं। बुनियादी तौर पर वो दिल की कमजोरी है दरअसल। हाँ जी, इसमें लगातार होता है और इसमें सिर्फ जाफा पड़ता है जी। किसमें लगातार होता है? कैक्टस में क्या होता है? वो जब जहाँ भी इसका रश होता है एकदम ऐसे करता है कैसे? और बाला डलन ऐसे ऐसे। आपका हाथ तो टेलीविजन वाले ने देखा, मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। कहते हैं जो कैक्टस है उसमें तो ऐसा करते हैं ना, ऐसे, और बेलाडोना में ऐसे ऐसे, दोनों एक ही तरह है, सिर्फ जोर का फर्क है लगा है। बेलाडोना में भी बड़ा सख्त तशन्नुज होता है, बहुत जोरदार, लेकिन कैक्टस में बुखार नहीं होता। बेलाडोना में गर्म हो जाता है वो हिस्सा, और जहां भी बेलाडोना का असर है वहां गर्मी नुमाया होती है। इसमें दबाव तो है लेकिन गर्मी और बुखार खास तौर पर उनका है, वो नहीं पाया जाता। एक और बात, बेलाडोना में खौफ नहीं है। बेलाडोना के मरीज में स्टूपर तो है, बेहोशी, गफलत और तकलीफ की शिद्दत, मगर बेचैनी और खौफ नहीं है। डलका के मरीज को जब मसलन दिल में, कैक्टस के मरीज को जब दिल में अचानक धक्का लगता है तो इतना शदीद लगता है कि वो समझता है बस अब बच ही नहीं सकता, इसलिए एकोनाइट वाली इलामतें जाहिर हो जाती हैं। शदीद खौफ नॉर्म, आमतौर पर उसकी तबीयत में खौफ नहीं है, मगर बीमारी के अचानकपन की वजह से और इसके कैक्टस के खुसूसी मिजाज की वजह से उसमें मौत का खौफ पैदा हो जाता है।
اور بعض کنٹریکشنز اس طرح ہیں جس طرح کہ ایک تاریں کسی جا رہی ہوں ارد گرد، اسٹرنگز میں چکر دے کے تو انسان اس کو تن رہا ہو. یہ چیز بیلاڈونا میں نہیں ہے. سب جگہ ٹائٹنس کنسٹرکشن، یہ جو گلے کی کنسٹرکشن ہے ٹائٹنس جو بعض دفعہ کالر بھی نہیں بند کرنے دیتی، اور کس دوا میں پائی جاتی ہے نمایاں؟ لیکسز میں ہائیڈروسیانک ایسڈ اور ہائیڈروفوبینم میں یہ ٹائٹنس اس طرح نہیں پائی جاتی. جب ان کا حملہ ہو تو بڑا سخت اسپیزم لمبے عرصے کے لیے جکڑ دیتا ہے. یہ جو میں ٹائٹنس کہہ رہا ہوں یہ علامت خاص طور پر اس میں ہے لیکسز میں بھی اور گلونائن میں بھی پائی جاتی ہے. یہ جو دوا ہے یہ اسپیزم کی جو خاص علامت ہے، اس کی وجہ سے بعض دفعہ وہ زخمی سا ہو جاتا ہے وہ عضو جہاں اسپیزم پایا جائے. اور یہ عورتوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے اگر یہ علامتیں پائی جائیں. خاص طور پر نو بیاہتا عورتوں کے لیے یہ دوا پیش نظر رہنی چاہیے. جب ایسی کوئی دلہن آپ کے سامنے آئے جس کو یہ علامتیں غیر معمولی طور پر شادی کے بعد ظاہر ہوں تو اس کا علاج کیکٹس سے ہونا چاہیے. یوٹرس میں بھی پھر یہ کنسٹرکشن پہنچ جاتی ہے اور سارا لگتا ہے رحم یوں سکڑ کے گچھا ہو گیا ایک دم، اور تکلیف سے چیخ نکل جاتی ہے اور خوف پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. اس قسم کی نمایاں کنسٹرکشن کیکٹس ہی کی علامت ہے. اس کی جو کنسٹرکشنز کا احساس ہے وہ جسم کے ہر حصے میں ظاہر ہو جاتا ہے، ایسے حصوں میں بھی جہاں عام طور پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں بھی کنسٹرکشن ہوگی. مثلا یہ اتنا سا حصہ یہاں یوں کر کنسٹرکٹ ہو گیا، ہاتھ کے پیچھے یہاں کنسٹرکشن ہو گئی. تو جہاں اجنبی جگہوں پہ جہاں عام طور پر تشنج نہیں ہوا کرتے وہاں کسی خاص حصے پر کنسٹرکشنز کا احساس سے بند گیا، گھٹ دیا گیا ہے اور تشنج بھی ہو بعد میں. یہ کیکٹس کی نمایاں علامت ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے. گاؤٹ اور روماٹزم میں بھی اس کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے معاف حصوں میں. بعض دفعہ روماٹزم اور گاؤٹ میں بعض حصوں پر خون رش کرتا ہے، ہر جگہ نہیں، ہر گاؤٹ کی قسم میں نہیں، بعض میں مثلا کولچیکم میں. اور وہ نمایاں ہوتا ہے پاؤں کے جو انگوٹھا اس کے ارد گرد کا حصہ ہے وہ متورم ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، کوئی چیز نہیں لگتی اس کے اوپر. یہ کس چیز میں ہے؟ یہ کولچیکم اور بنزوئک ایسڈ، سمجھیں؟ اس میں ان جگہوں میں بھی اسپیزم ہوتا ہے. گاؤٹ جمع اسپیزم یہ ایک عجیب کمبینیشن ہے جو اس دوا میں پایا جاتا ہے. دل کے امراض میں اس کا بہت ہی فائدہ ہو سکتا ہے اگر تکلیف دل ہی کے حصے میں اسی حصے میں محسوس ہو. انجائنا میں تکلیف سٹرنم میں ہوتی ہے
ये जो हिस्सा है छाती के बीच की लकीर, इसमें दर्द होती है, इसी में कंस्ट्रक्शन हुआ करती है। लेकिन ये कैक्टस उससे अलग इसलिए है कि इसमें कंस्ट्रक्शन, दिल की कंस्ट्रक्शन दिल ही के हिस्से में होती है। वही किसी ने जैसे एनिमल में डाल दिया हो, किसी ने जकड़ दिया हो यूं करके, जिस तरह पकड़ते हैं ना, प्लास से किसी चीज को पकड़ लेते हैं, ऐसी कैफियत होती है। तो दिल की बहुत सी तकलीफों में मुफीद है अगर दिल की तकलीफ दिल ही में महसूस हो। हार्ट में एनवलाजमेंट भी हो गई हो, मरमर शुरू हो चुके हों, अगर ये कंस्ट्रिक्शन जो इसकी है इलामत है ये उसमें पाई जाती है, तो कैक्टस खुदा तआला के फजल से क्यूरेटिव है। ये मरीज को वक्ती आराम नहीं देती, खुदा के फजल से मुस्तकिल शफा बख्शने का इसमें मादा पाया जाता है। किडनीज में पहले बता चुका हूं, उसकी तकलीफों में अगर क्रॉनिक हो जाएं तो वर्में पैदा हो जाती हैं, पांव सूज जाते हैं, टांगें सूज जाती हैं, फुलफुली वर्में। ऐसी सूरत में भी अगर कैक्टस की इलामतें वो स्पेज़म वाली पाई जाती हों तो सारे हिस्सों को शफा बख्शने की ताकत है इसमें, वो फज़ल ताला। बाज़ दफ़ा और कोई इलामत नुमाया ना हो तो ये जो कंस्ट्रिक्शंस का अचानकपन और इनकी शिद्दत ही कैक्टस को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। तफसीली तमीज़ करने वाले झगड़े ना भी हों कि इसको आँखों उससे तमीज़ किस तरह कैसे की जाए, इसकी उससे तमीज़ कैसे की जाए, सिर्फ ये बात, दो बातें पाई जाएं कि कंस्ट्रिक्शन हुई है अचानक, बहुत तेजी से हुई है, बहुत सख्त हुई है और उसने मरीज को खौफजदा कर दिया है। ये इलामतें इस तर्ज पे पाई जाएं तो बिला तरद्दुद कैक्टस दे देना चाहिए, क्योंकि अगर कैक्टस इसकी दवा हुई तो बहुत तेजी से ठीक कर देगा, अगर ना हुई तो नुकसान कोई नहीं है। इसलिए कैक्टस हंगामी दवाओं के तौर पर आपके डब्बों में रहना चाहिए। ठीक है ना, आपके डब्बे में रखा हुआ है। हाँ जी। इसमें जो रूमेटिज्म कैक्टस से ताल्लुक रखता है, उसमें एक बात याद रखें कि बाजुओं के ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स, रानों के मसल्स, इनमें कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि शुरू में मैं आपको बता चुका हूं इसकी कंस्ट्रिक्शन का सर्कुलर फाइबर से ताल्लुक है। जो लॉन्ग मसल्स हैं उन पर कैक्टस का तशन्नुजी असर कोई नहीं है, लेकिन बाज़ दवाएं हैं जिनका लॉन्ग मसल्स पर नुमाया असर होता है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछली दफा। क्या थी वो? कॉलुसिन। जीत गई आपकी बेटी, माशाल्लाह। कॉलुसिन लॉन्ग मसल्स किसी तकलीफ में, उनके तशन्नुज में बहुत नुमाया असर रखती है। तो ये देखने वाली बात है कि लंबे फाइबर्स का तशन्नुज है या सर्कुलर फाइबर का। इसका सर्कुलर फाइबर से ताल्लुक है। लंबे मसल्स में बेलाडोना भी है, कॉलोसिंथ भी है, लेकिन इसका लंबे मसल्स पे कोई असर नहीं है। घुटनों में होगी तो क्या? घुटनों में स्पैज़म होगा? घुटनों में पता नहीं मुझे। सर्कुलर है उसमें। हस्बैंड यूं कर दो, हर चीज सर्कुलर हो जाएगी।
इधर मैंने कहा यूं करके सर्कुलर बना दो, घुटना भी गोल, सर भी गोल है, हर चीज गोल गोल ही है, उंगलियां भी गोल हैं। सर्कुलर फाइबर और चीज है। सर्कुलर फाइबर वो छल्ले होते हैं जो चीजों को इखराज को रोकने के वक्त तंग रहते हैं, जब चीजें निकलने का हुक्म आ जाए तो खुल जाते हैं। इजाबत में, पेशाब में, रोजमर्रा यही फाइबर हैं जो आपके काम करते हैं। गले के फाइबर्स हैं निगलने के लिए, वो सर्कुलर फाइबर सुगड़ते हैं, उगलने के लिए खुलते हैं। तो ये जो सर्कुलर फाइबर्स हैं इनकी बात हो रही है। हमने सारा मामला ही गोल कर दिया। बेलाडोना के अगर दिमाग पर रश है, मसलन हमला हुआ है, बहुत ज्यादा रश है ब्लड का, तो वो दिमाग पे तो कंस्ट्रिक्शन नहीं पैदा करता, वहाँ रेविंग सी और कंजेस्शन पैदा कर देगा, लेकिन एक्सट्रीमिटीज में जिस तरह क्यूपरम का असर होता है वहाँ कंस्ट्रिक्शन पैदा करता है। मगर कैक्टस दिमाग के हमले में अगर दिमाग की तरफ रश है तो नहीं करता। उसकी वजह है कि वहाँ सर्कुलर फाइबर है कोई नहीं और इसका असर दूर दराज इलाकों पर नहीं पड़ता, इसलिए ये भी एक पहचान है। कैक्टस का मरीज अगर उसके दिमाग पर हमला है खून का तो वो बेहोशी की तरफ मायल हो जाएगा, स्टूपर की तरफ मायल हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कंस्ट्रिक्शंस नहीं है। बेलाडोना की दिमाग की कंस्ट्रिक्शंस पाँव के अंगूठे तक भी ज़ाहिर हो जाती हैं, वहाँ भी धड़कन और वो जाफा जिसको हम कहते हैं। चलें जी, चक्कर फिजिकल एक्सर्शन से ज्यादा, आराम से कम, बिस्तर में टर्न करने से नुमाया, डीप इंस्पिरेशन लेने से भी बाद में चक्कर आ जाते हैं। यानी हरकत किसी किस्म की जो है वो बैलेंस को बिगाड़ती है। इसमें और कौन सी दवाएं हैं इस किस्म के चक्रों में? हाँ, और कोनियम में खासतौर पर लेट के करवट लेने से होता है हमें। अगर लेटने पे दाईं तरफ करवट लेने से चक्कर आए लेकिन बाईं तरफ से लेटने पे ना आए तो उसमें गालिबन सिक्यूटा है या कोई दवा है जिसका इससे ताल्लुक? गालिबन सिक्यूटा है, इसमें दाईं तरफ एक तरफ लेटने से आते हैं, दूसरी तरफ लेटने से नहीं आते। अच्छा, और किस तरह लेटने से आते हैं? दाईं तरफ करवट लेने से आते हैं और बाईं तरफ आराम रहता है। अगर बाईं तरफ से आएगा यही इलाज हो तो चक्कर याद करा दिया करेंगे। गालिबन उसमें है तो सिक्यूटा में है गालिबन, ये खा के देखें बताना फिर। इसका सर दर्द अमूमन दाईं तरफ होता है और शोर लगता है जैसे बकाया हिट किया है दिमाग को किसी चीज ने। आवाज सॉलिड चीज की तरह दिमाग को हिट करती है अगर दर्द हो रहा हो तो। पल्सेशंस तो बेलाडोना में भी होती है ना। फर्क क्या है? वहां हॉट होता है आदमी, जो अज़ाब पल्सेट करें बेलाडोना में वो हॉट जरूर होंगे, लेकिन इसमें हॉट नहीं होते। बगैर हीट के नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर भी वो पल्सेट करते हैं। हर जगह नब्ज महसूस होती है, यानी सिर्फ यहाँ उंगली हाथ पे कलाई पर उंगलियां रखने से नहीं बल्कि हर जगह नब्ज धड़क रही होती है।
बाएं बाजू में अगर नमनेस हो और कुछ कंस्ट्रिक्शंस भी हों इस शोल्डर से लेके नीचे तक, तो ये कैक्टस को तलब करती हैं। और बाज़ दफ़ा दिल की बीमारी के आगाज़ में ये अलामत पैदा होती है, मगर ज़रूरी नहीं कि बाएं बाजू की दर्द दिल ही की हो। बसा औक़ात मैदे की अल्सरेशन से भी, मैदे की तेज़ाबियत से भी यही अलामत पैदा हो जाती है। मगर अगर कंस्ट्रिक्शन हो, जैसे टाइट करके कस दिया गया है, और या धड़कन हो और साथ नमनेस भी हो, तो फिर कैक्टस दवा है और बिलअमूम इसका दिल से कुछ ताल्लुक होता है। तो मैंने फैसला किया जल्दी जल्दी दवाएं पढ़ाऊंगा आपको निस्बतन। आज तीसरी दवाई भी शुरू करने लगा हूं, क्रियोजोट। क्रियोजोट पढ़ा तो नहीं चुका पहले। इसके अंदर 3 इलामतें नुमायां हैं जो क्रियोजोट बना देती हैं। तमाम डिस्चार्जेस काटने, जलाने और करोड करने वाले होते हैं। एक्सक्यूरिएटिंग जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, यानी छीलने वाले और खराश पैदा करने वाले। और पल्सेशन इसकी कैक्टस से मुकाबले करती है, मगर तशन्नुज वो नहीं है जो कैक्टस में पाया जाता है। क्रियोजोट में पल्सेशन बहुत बहुत पाई जाती है। और तीसरी खास अलामत इसकी ब्लीडिंग है, जो बहाना चाहती है। आंख में वरम है, डॉक्टर यूं उंगली लगा के देखेगा तो थोड़ा सा ब्लड लूज कर जाएगा। यूट्रस में भी यही कैफियत पैदा हो तो ऐसी औरतों को मुस्तकिल ब्लीडिंग की बीमारी लग जाती है। वक्त से पहले मेंसेस और ब्लीडिंग, जो मेंसेस खत्म हो रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चलता औरत को कि मेंसेस खत्म होकर बीमारी की ब्लीडिंग शुरू हो गई है। वो उसमें वो ब्लीडिंग फिर भी जारी रहती है। ये ब्लीडिंग का किसी बहाने से भी हो जाना और जिस्म के हर हिस्से में ब्लीडिंग का रुझान पाया जाना, ये क्रियोजोट की खास अलामत है। गम्स भी फुसफुसे से स्पंजी से होकर दांतों को छोड़ते हैं, और हाथ से भी आप अगर मुंह साफ करेंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्रश से लाजमन ब्लीडिंग होगी। इसलिए ये जो ब्लीडिंग वाला इसका हिस्सा है, इसको खास तौर पर पेश नजर रखें। आमतौर पर सुर्ख ब्लीडिंग होती है, मगर बीच में स्याह ब्लीडिंग का भी एक गश सा आता है, और औरतों को बाद 2-2, 4-4 दिन सख्त स्याह ब्लीडिंग भी होती है, जबकि नॉर्मली सुर्ख हो रही होती है। इसलिए क्रियोजोट की ये अलामतें बाद और दवाओं में भी हैं, मगर क्रियोजोट में बड़ी नुमायां हैं। पल्सेशन, धड़कने, ब्लीडिंग, बात बात पर, मामूली बहाने पर, और तीसरी चीज क्या है? क्या? छीलने वाला माता नहीं। छीछी कह रहे थे, छीलना कह रही थी आप, मुझे यही समझ नहीं आएगा कि छीछी क्या लगाई आप लोगों ने। खराश पैदा करने वाला, छील देने वाला अखराज, ये इसकी खास अलामत है। प्रिक हो जाए ना जरा सा पिन का तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बाज़ दफ़ा आंसुओं में भी खून पाया जाता है। मुंह के जो बच्चों के आपने देखे होंगे, बाज़ बच्चों के मुंह के किनारे छिले हुए और जख्मी होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह क्रियोजोट है, क्योंकि अगर क्रियोजोट की अलामतें पाई जाएंगी तो लुआब जो निकलता है यहाँ किनारों पे लगता है,
خاص طور پہ رات کو سوتے وقت وہ ساری طرف چھیل دیتا ہے، اور ایسے بچوں کے منہ کے دونوں کنارے ضرور زخمی رہتے ہیں، اور ناک کے کنارے بھی نیچے چھلے ہوئے اور زخمی، ایک تو نزلے میں ہو جایا کرتے ہیں بعض دفعہ وہ رگڑنے سے، بار بار رومال استعمال کرنے سے. یہ ایک مستقل علامت ہے ایک، اور بڑی تکلیف دہ چیز ہے. وہ کریوزوٹ کی علامت ہے، کیونکہ جو اخراج ہلکا ہلکا رشتہ ہے ناک سے بھی وہ بھی چھیلنے والا ہے، اور منہ کا لعاب چھیلنے والا ہے. پیشاب میں بھی تیزی ہے، سمارٹنگ ہے. سمارٹنگ کہتے ہیں کہ ایک دم جیسے ڈنگ مار دیا ہو کسی نے. بس کیکٹس کے ساتھ میں نے اس لیے خاص طور پہ اس کو پڑھایا ہے کہ اس میں جو اسپیزمز ہیں جگہ جگہ، تھرابنگز، دل کی دھڑکنیں ہر جگہ محسوس ہونا، یہ کیکٹس اور ان دونوں کو قریباً ہم پلہ بناتا ہے. ایسی نمایاں علامتیں ہیں ان دونوں میں. مگر تھرابنگ کے ساتھ شدید اسپیزم اور درد یہ اس میں نہیں پایا جاتا، یہ کیکٹس کا حصہ ہے. نوز بلیڈ ایسے بچوں کو اکثر ہوتی رہتی ہے. لمبے عرصے تک چلنے والے ہیمریجز، خواہ وہ کڈنی سے ہوں، خواہ وہ یوٹرس سے ہوں، خواہ وہ ناک سے ہوں، آنکھوں سے ہوں، آپ کو ہمیشہ کریوزوٹ کی یاد دلائیں گے یا دلانی چاہیے. اس پہلو سے عورتوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے. ان کی بلیڈنگ چھلنے سے، پریشر سے، کسی طرح سے بھی بلیڈنگ شروع ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے. یعنی بلیڈنگ اچھی چیز نہیں، یہ دوا بہت اچھی ہے. اس میں ایک چیز ہے، اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. کیکٹس میں عموماً اریٹیبلٹی نہیں پائی جاتی، یعنی مزاج کی تیزی اور غصہ اس میں نمایاں ہے. بلکہ بعض دفعہ یہ کیمومیلا کا مقابلہ کرتا ہے غصے میں اور تیزی میں. مگر کیمومیلا ایک مستقل عادت ہے، اس کے مریضوں میں کبھی کبھی پایا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. یہ مستقل مزاج نہیں ہے اس کا. بعض دفعہ بیماری جب شدت اختیار کرے اور ہر وقت تنگ کر رہی ہے، چھیل رہی ہے، تو آدمی چڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے طبیعت میں کیمومیلا والی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. کیمومیلا کا مریض تو اچھا ہو یا ٹھیک ہو یا بیمار ہو، ہر حال ہی میں وہ غصے والا ہے. چیز طلب کرے گا، پھینک دے گا. بدخلقی پائی جاتی ہے کیمومیلا میں. منسٹرل فلو سے رونیس پیدا ہو جاتی ہے. چھیلنے والا جو بھی اثر ہے وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. دوسرے، بعض دفعہ اس کے اخراجات جب سیاہی مائل ہوں تو بدبودار بھی ہوتے ہیں، بہت نمایاں بدبو پائی جاتی ہے. اس لیے بدبو کے وقت سیاہ ہوں گے، ورنہ نہیں. گمز میں آپ کو پڑھا ہی چکا ہوں. کھلے اسپنجی ہو جانا، پھیل جانا، خون کا اخراج. ایک اور علامت اس کی بہت اچھی ہے جو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، بڑی کیوریٹو بھی ہے اس میں. ایک تو رات کو بچوں کے پیشاب میں بھی کارآمد ہے یہ، مگر جس وجہ سے وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے میں بھی عام طور پر آدمی بیٹھا ہوا اس کو کچھ نہیں محسوس ہو رہا. جب پیشاب آئے گا تو ایک دم آئے گا، اس زور سے آئے گا کہ ناقابل برداشت ہے. اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ غسل خانے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی لگتا بھی ہے اور ہو بھی جاتا ہے.
تو یہ جو علامت ہے یہ اس کی علامت ہے کریوزوٹ کی. سمجھ گئے؟ کئی دفعہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اس مرض کے متعلق. اور کریوزوٹ اگر کچھ عرصہ کھلائی جائے، یہ ایک دم نہیں کہ 2-3 خوراکوں سے ٹھیک ہو جائے. میں نے جو دیکھا ہے اس کو کچھ عرصہ کھلائی جائے تو رفتہ رفتہ جو پیشاب آنے پر حاجت کی تیزی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور پیشاب کو روکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ کریوزوٹ میں جو سپیزمز ہیں کیکٹس کی طرح، یہ غالباً یہی ہیں جو ذمہ دار ہیں اچانک پیشاب کے نکل جانے کے. جب وہ پیشاب آتا ہے، دباؤ اس کا ہوتا ہے جب، تو ساتھ اس کا سپیزم ہو جاتا ہے اور سپیزم کے زور سے سپٹ کر کے پیشاب کو نکال دے گا وہ. اور سپیزم پر بندے کا اختیار کوئی نہیں ہوتا. اس لیے اس کا مسکولر ویکنس سے وہ تعلق نہیں ہے جتنا سپیزموڈک ٹینڈنسی سے تعلق ہے. معدے میں بھی اس کا سپیزم ہوتا ہے بڑا سخت. نوزیا، وامٹنگ، فوڈ کا تیزابی حالت میں نکلنا. تیزابیت تو ہر جگہ پائی جاتی ہے نا اس میں. انڈائجسٹڈ ہوتا ہے، گلے میں خراش پیدا کر دیتا ہے. یعنی جب کیا کریں تو جو اندر سے آدھا ہضم ہوا فوڈ نکلتے ہیں، یعنی خوراک نکلتی ہے، اس میں تیزابیت ہے اور چھیلنے کا مادہ پایا جاتا ہے. اس میں ایک اور خاص اس کی علامت ہے کہ پانی بعض دفعہ پیچھے کڑوا ٹیسٹ چھوڑ جاتا ہے. کئی دفعہ بعض بیماروں کو پتہ لگتا ہے، مجھے بھی کئی دفعہ یاد ہے بیماری کے بعد پانی میں ویسے پیتے وقت نہیں لگتا، لیکن جب پانی ختم ہوا تو کڑواہٹ کا احساس، یہ اس کی خاص علامت ہے. منہ کا عام طور پر کڑوا ہونا ہائیڈریسٹس میں نمایاں پایا جاتا ہے جو جگر کی خرابی کی وجہ سے ہے. میلیگنینسی میں بھی یہ بہت مفید ہے، مگر جلدی استعمال ہو تو کوریٹو، دیر میں استعمال ہو تو کونیم کی طرح فائدہ تو پہنچا دیتا ہے چند سال کے لیے، مگر اس کو کینسر کو مستقل ختم نہیں کر سکتا. معدے کے کینسر میں کونیم اور یہ دونوں دوائیں آغاز میں دینی چاہیے. علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے اگر کیکٹس کی علامتیں پائی جائیں تو کیکٹس شروع کرا دینی چاہیے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ معدے میں کینسر ہے کہ نہیں. کونیم کی علامتیں ہوں تو کونیم ضرور شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ اپنی علامتیں معدے کے کینسر کی باہر نہیں پھینکتی دوائیں، یہ دونوں دوائیں، اس وقت تک علاج ہو سکتا ہے. جب وہ باہر پھینک دیں تو پھر صرف آرام دیا جا سکتا ہے، یا 2-4 سال تک کے لیے ایک زندگی کو اپنے آخر مقام کی طرف بڑھانے کی کوشش ہے، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں. آخری مقام تک بڑھانے کی کوشش میں نے عمدن محاورہ نیا بنایا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو تو کہہ دیتے ہیں نا کہ 4 سال بڑھ سکتے ہیں زندگی کے، بڑھ نہیں سکتے. جو کم ہو رہے ہیں خدا کی مقررہ مدت سے، وہ کمی ہٹ سکتی ہے. اس لیے بیماری اور شفا کا یہی فلسفہ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جو مدت مقرر ہے آخری، اجل مسمى کہتا ہے قرآن کریم، اس سے تو نہ آگے بڑھ سکتے ہو، جب وہ آ جائے تو ادھر ادھر اس کو کھینچا نہیں جا سکتا. ایسی لکیر ہے جس سے آگے پیچھے سرکنا ناممکن ہے، ٹل نہیں سکتی وہ. لیکن اجل مسمى تک خدا تمہیں پہنچا دے گا اگر تم نیک اعمال کرو گے. اس قسم کے مضامین اور بخشش کے نتیجے میں اجل مسمى تک عمر لمبی کی جا سکتی ہے، انفرادی بھی اور قوموں کی بھی. بس بیماری کا یہ مضمون ہے، بیماری عمر کو کم کرتی ہے، صحت عمر کو بڑھاتی نہیں بلکہ مقررہ عمر تک لے جانے میں مدد کرتی ہے. اس لیے ہمارے جو طبی محاورے ہیں ان میں بھی یہ مذہبی رنگ اور اس کی احتیاطیں غالب رہنی چاہیے.
गर्मियों के डायरिया में ये मुफीद दवा है। उसमें इलामतें अमूमन ये पाई जाती हैं, छीलने वाली और ये सब चीज़ें। और जब इसकी इलामतें हों तो डायबिटीज़ की क्यूरेटिव भी हो जाती है। यानी क्रोजोट की इलामतें जिस मरीज में हों, अगर उसको आप पेशाब का आना और इस तरह से आना जैसा मैंने बयान किया है, और अगर डायबिटीज़ का मरीज है तो वो भी शफा हो सकती है खुदा के फजल से। और वक्त हो गया दोनों मुठ्ठियाँ। अच्छा, आपकी मुठ्ठियाँ तो यूँ हैं जैसे स्पेज़म हुआ हो, पेट यूँ बंद हुई हैं, जिस तरह कैक्टस का स्पेज़म हो तो यूँ मुठ्ठियाँ बंद होती हैं, ठीक है ना। कैक्टस में मुठ्ठियाँ बंद नहीं होती, मगर मुठ्ठियाँ बंद होती हैं प्लम्बम में और इस किस्म के जो लॉन्ग फाइबर्स के स्पेज़म्स हैं, जो सर्कुलर है ना जैसा गोल गोल चीज़, उसके स्पेज़म्स और हैं, वो लॉन्ग फाइबर्स के नहीं होते। मैंने वैसे मजाक में कहा था, मैंने इसलिए समझा रहा हूँ कि इनको गलत फहमी ना हो जाए कि मैं संजीदगी से आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।